Okay, students, now we'll see the definition. The definition is null set. What is null set? Let's see the definition. A set containing no elements is called null set. A null set can be denoted by phi. This can be pronounced as phi, phi, and you can also write simply braces. So what is null set? नल सेट हम इसको बोलेंगे कि जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं है, देन दिस इज कॉल्ड अ नल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय phi और simply braces having no elements. For example, if I write A is equals to set of all x where x square x cube belongs to n and x is equals to 1/2, 2/3 and so on. So here you can see that you have to consider this x and cube should be belongs to n. 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/8 मिलेगा, लेकिन 1/8 doesn't belongs to this. So you can write this is a null set having no values, or you can denote it by phi. So this is what you can write the example of null set. Now let me see another definition, that is finite set. What is finite set? A set is called finite set if it contains finite value or elements should be countable. If we can count the elements in the set, then it is called a finite set. For example, A is equals to 1, 2, 3, 4. This is called a finite set because there are 4 elements. Now we'll see the another definition, that is infinite set. So what is infinite set? Infinite set. So what is infinite set? A set which is not finite is called
इनफाइनाइट सेट। सेट जो फाइनाइट नहीं है हम उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 अप टू infinite, then this is called infinite set. Okay, now we'll see another definition, that is cardinality of a set। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या है हम देखेंगे इस डेफिनेशन के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set is called cardinality of a set। सेट के अंदर स्टूडेंट्स जितने एलिमेंट्स है उसका काउंट जो है हम उसको कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल A is equals to 1 2 3, so we can write cardinality of A is equals to 3 because there are 3 elements in the set, so cardinality of this is 3। or you can write n of A, it is a symbol of cardinality, so n of A is equals to 3। so this is your definition of the cardinality of a set। now let us see some example whether it is finite or infinite। let's see some example। number 1, the set of lines which are parallel to x-axis। number 1, the set of lines which are parallel to x-axis। आपको बताना है whether the sets are finite or infinite। okay, so number 1 is the set of lines which are parallel to x axis। हमको ऐसी लाइन लिखनी है जो x axis के पैरेलल है। तो अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें, ये x axis है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है स्टूडेंट्स? x एक्सिस के पैरेलल आप देखोगे तो इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सेट है इसको हम लिखेंगे दिस इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी लाइन है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ विल सी द सेकेंड एग्जाम्पल। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ letters in English alphabet। The set of letters in English alphabet। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर टोटल कितने लेटर्स है? 26। सो इट इज finite set। okay,
Number 3, the set of numbers which are multiple of 5. The set of numbers which are मल्टीपल ऑफ 5. 5 के मल्टीपल के अंदर कितने नंबर हो सकते हैं? तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15. ये सब 5 के मल्टीपल है. 5, 10, 15, तो ये इनफाइनाइट तक जाते हैं. तो हम इसको लिखेंगे इट इज infinite set. So this is infinite set. Okay, then we'll see the set of animal living on the earth. The set of animal living on the earth. Number 4, the set of animals living on the earth. The set of animals living on the earth. अर्थ पे कितने एनिमल्स है? तो हमको लगेगा स्टूडेंट्स की अर्थ पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेकिन बहुत सारे है, फिगर बड़ा है, लेकिन हम काउंट तो कर सकते हैं. तो हम इस सेट को बोलेंगे इट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि ये काउंटेबल है. फिगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ है, लेकिन फाइनाइट तो है ही है, हम इसको काउंट तो कर सकते हैं. नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल. The set of circle passing through the origin. The set of circle passing through the origin. ऐसा सर्कल हमको ड्रॉ करना है जो ओरिजिन में से पास होता हो. सो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ये सर्कल है ओरिजिन, ये सर्कल भी ओरिजिन, ये सर्कल भी ओरिजिन, राइट. तो ये सभी सारे सर्कल्स जो है ये ओरिजिन में से पास हो सकते हैं. कहीं कभार ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, क्योंकि ये ओरिजिन में से पास हो रहे हैं सर्कल. तो ये सभी सर्कल जो है ये ओरिजिन में से पास हो रहे हैं. तो हम इसको बोलेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट. ये इनफाइनाइट सेट है स्टूडेंट्स. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट डेफिनेशन. इक्वल सेट. इक्वल सेट्स किसको बोलेंगे हम? इक्वल सेट. लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. हम 2 सेट लेते हैं क्योंकि इक्वालिटी चेक करनी है, तो एक से ज़्यादा सेट होने चाहिए. मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट. सो ए एंड बी आर 2 सेट्स. देन A is equals to B. If कभी बोलेंगे ये दोनों इक्वल है, A is equals to B if the elements of A are same as
the elements of B. स्टूडेंट्स ए और बी के जो एलिमेंट्स है वो सेम रहने चाहिए, तभी बोल सकते हैं कि ए और बी इक्वल सेट है. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल्स टू डी सी बी ए. तो यहाँ पे आप देखोगे ए और बी का ऑर्डर अलग है लेकिन एलिमेंट्स तो ए बी सी डी ही है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू बी और इसकी कार्डिनलिटी भी सेम है. एन ऑफ ए 4 मीन्स 4 एलिमेंट्स है और एन ऑफ बी इज ऑल्सो 4. जब एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे तो कार्डिनलिटी भी उसकी इक्वल रहेगी. सो दिस इज कॉल्ड अ इक्वल सेट. 3 सेट भी इक्वल हो सकते हैं, 4 भी इक्वल हो सकते हैं. वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए स्टूडेंट्स. सो आई होप दैट टुडे वी हैव सीन द null set, finite set, infinite set, equal sets and related examples of this 4 definition. I hope that this would be clear to you. In the next lecture we'll see some more examples and definitions of the set theory. Thank you very much.